أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے مخلوق میں مقبولیت کا ایسا درجہ عطا فرما دیا کہ کم عمر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا اور سب نے مل کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا سردار مان لیا۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ کعبہ کی تعمیر کے وقت پیش آیا، جس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو زوردار بارش سے کعبہ میں ایسا سیلاب آ گیا کہ کعبے کی عمارت بالکل گر گئی۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ، قبیلہ جرہم اور قصے وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبے کی تعمیر اور مرمت کرتے رہے تھے، مگر چونکہ عمارت نچلی جگہ میں تھی اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھارا مکہ سے ہو کر گزرتا تھا اور اکثر کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبے کی حفاظت کے لیے اوپری حصے میں قریش نے کئی باندھ بھی بنائے تھے، مگر وہ باندھ بار بار ٹوٹ جاتے تھے، اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو گرا کر پھر سے کعبے کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ اونچا ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے اور قریش کے سرداروں کے ساتھ اپنے کاندھے مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ الگ الگ خاندان نے تعمیر کے لیے الگ الگ حصے آپس میں بانٹ لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو خاندانوں میں سخت جھگڑا ہو گیا۔ ہر خاندان یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں لگائیں تاکہ ہمارے خاندان کے لیے یہ فخر کرنے کی وجہ بن جائے۔ اس جھگڑے میں 4 دن گزر گئے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں نے تلواریں نکال لی۔ بنو ابودار اور بنو عدی کے خاندان نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لی۔ 5ویں دن کعبہ میں تمام عرب کے خاندان جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو سلجھانے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ مشورہ دیا کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہو اس کو پنچ مان لیا جائے اور وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو مان لیں۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ صبح جو شخص کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہے، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا اس طرح فیصلہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس جس خاندان کے لوگ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر خاندان والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا اور حجر اسود اپنی جگہ تک پہنچ گیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایسی خون خرابے والی لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں پتہ نہیں کتنا خون خرابہ ہوتا۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا، اس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد بنا کر چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا حتیم کہلاتا ہے، جس میں کعبہ معظمہ کی چھت کا پانی گرتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے جو آپ کے خاص دوست تھے وہ سب بہت ہی اونچے مرتبے والے اور اخلاق مند تھے۔ ان میں سب سے زیادہ قریب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو سالوں سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، چاہے سفر ہو یا سفر نہ ہو اور بزنس ہو یا دوسرے معاملات، ہمیشہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ حضور کے اتنے قریب تھے کہ حضور آپ کو راز کی باتیں بتاتے تھے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حجام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش کے بہت بڑے رئیس تھے
और जिनको अल्लाह ताला ने ये खास शरफ दिया कि उनकी पैदाइश खाना काबा के अंदर हुई थी। ये भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खास दोस्त में से थे। हजरत जमात बिन सालबा रदियल्लाहु ताला अन्हु जो जाहिलियत के ज़माने में हिजामा का काम करते थे, ये भी खास दोस्त में से थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद ये अपने गांव से मक्का आए तो कुरैश के काफिरों के मुंह से ये बकवास प्रचार करते हुए सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीवाना हो गए हैं, माज़अल्लाह। फिर ये देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रास्ते में तशरीफ ले जा रहे हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे लड़कों की एक भीड़ है जो शोर मचा रही है। ये देखकर हजरत जमात बिन सालबा रदियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ शक पैदा हुआ और पुरानी दोस्ती के बिना पर इनको बहुत ही दिली तकलीफ हुई। चुनांचे ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं डॉक्टर हूँ और दीवानेपन का इलाज कर सकता हूँ। ये सुनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद कुछ जुमले इरशाद फरमाए, जिनका हजरत जमात बिन सालबा रदियल्लाहु ताला अन्हु के दिल पर इतना गहरा असर पड़ा कि वो फौरन ही इस्लाम में दाखिल हो गए। हजरत कैस बिन साइब मखजूमी रदियल्लाहु ताला अन्हु तिजारत के कारोबार में यानी बिजनेस के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ शामिल रहा करते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्तों में से थे। कहा करते थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामला अपने बिजनेस पार्टनरों के साथ हमेशा बहुत ही साफ सुथरा रहता था और कभी कोई झगड़ा पेश नहीं आता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का असल खानदानी पेशा तिजारत था यानी बिजनेस था और चूंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपन ही में अबू तालिब के साथ कई बार तिजारती सफर कर चुके थे, जिससे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तिजारती लेन देन का काफी तजर्बा भी हासिल हो चुका था। इसलिए रोजी रोटी के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तिजारत का काम शुरू किया और तिजारत के लिए शाम, बसरा और यमन का सफर फरमाया। और ऐसी ईमानदारी के साथ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तिजारती कारोबार किया कि आपके साथी और पूरे बाजार के लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अमीन के लक़ब से पुकारने लगे। एक कामयाब बिजनेसमैन के लिए सच्चाई, वादे की पाबंदी, अच्छे अखलाक का होना जरूरी है। इन खासियतों में मक्का के ताजिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो किरदार निभाया है, दुनिया उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। हजरत अब्दुल्लाह बिन अबील हमसा सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि वही के नाजिल होने के बाद, अब आप सोचेंगे कि वही क्या होता है, तो वही का मतलब होता है अल्लाह ताला का पैगाम जो फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के पैगंबरों को पहुंचाते हैं, इसी को वही कहा जाता है। हाँ, तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अबील हमसा सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि वही के नाजिल होने के बाद और ऐलान नबूवत से पहले मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ लेन देन का मामला किया। कुछ पैसे मैंने दे दिए, कुछ पैसे बाकी रह गए और मैंने वादा किया कि मैं अभी अभी आकर बाकी पैसे भी दे दूंगा। इत्तेफाक से 3 दिन तक मुझे अपना वादा याद नहीं आया। तीसरे दिन जब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मैंने आने का वादा किया था, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसी जगह इंतजार करता हुआ पाया। मगर मेरे इस वादा पूरा न करने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर जर्रा बराबर भी नाराजगी नहीं आई। बस सिर्फ आपने इतना पूछा कि तुम कहाँ थे, मैं इस जगह पर 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसी तरह एक सहाबी हजरत साइब रदियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसलमान होकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो लोग उनकी तारीफ करने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमसे ज्यादा इन्हें जानता हूँ। हजरत साइब रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने पूछा, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फिदा हूँ। आपने सच फरमाया। ऐलान नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे बिजनेस पार्टनर थे और क्या ही अच्छे पार्टनर थे। आपने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपना खत्म हुआ और जवानी का जमाना आया तो बचपन की तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जवानी भी आम लोगों से निराली थी, यानी अलग थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जवानी ये थी कि आप बेहद हया फरमाते थे। आपका चाल चलन इस तरह से था कि कोई भी इंसान इसमें कोई कमी नहीं ढूंढ सकता।
ऐलान नबूवत से पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी बेहतरीन अखलाक व आदात का खजाना थी। सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, वादे की पाबंदी, बुजुर्गों की खिदमत, छोटों पर नरमी, रिश्तेदारों से मोहब्बत, कौम के लोगों की खिदमत, दोस्तों से हमदर्दी मोहब्बत, गरीबों और मुफलिसों की खबरगिरी, दुश्मनों के साथ अच्छा बर्ताव, खुदा की मखलूक के साथ खैर खाही। हासिल ये है कि तमाम अच्छी अच्छी बातों में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने ऊंचे मर्तबे पर पहुंचे हुए थे कि दुनिया के बड़े बड़े इंसानों के लिए वहां तक पहुंचना तो क्या, उस बारे में सोच भी नहीं सकते। कम बोलना, फिजूल बातों से नफरत करना, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दुश्मनों और दोस्तों से मिलना, हर मामले में सादगी और सफाई के साथ बात करना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खास आदत थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लालच, दगाबाजी, फरेब, धोखा, झूठ, शराबनोशी, बदकिरदारी, नाच गाना, लूट मार, चोरी डकैती, गाली गलोच, इश्कबाजी, तमाम बुरी बातें और आदतें जो जाहिलियत के ज़माने में हर बच्चे के अंदर मौजूद होती थी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन तमाम ऐबों से पूरी तरह पाक और साफ सुथरी रही है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी का चर्चा पूरे अरब में था। मक्का के हर छोटे बड़े लोगों के दिलों में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक का चर्चा था। बचपन से लेकर तकरीबन 40 साल की उम्र शरीफ हो गई, लेकिन ज़माने जाहिलियत के माहौल में रहने के बावजूद शिर्क और बुत परस्ती से आपका दामन हमेशा पाक रहा। मक्का शिर्क और बुत परस्ती का सबसे बड़ा सेंटर था, केंद्र था। खुद खाना काबा में 360 बुतों की पूजा होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान वाले ही खाना काबा के मालिक थे, लेकिन उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी बुत के सामने अपने सर को नहीं झुकाया। हासिल ये है कि वही के नाजिल होने और नबूवत के ऐलान से पहले भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जिंदगी अच्छे अखलाक और अच्छी चीज़ों का नमूना थी और तमाम तरह के छोटे बड़े ऐबों से पाक और साफ सुथरी थी। चुनांचे ऐलान नबूवत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने बहुत कोशिश किया कि कोई छोटा सा ऐब या अखलाक से गिरी हुई कोई बात आपकी जिंदगी के किसी भी दौर में मिल जाए तो उसको उछालकर आपकी जिंदगी में कोई गंदा दाग लगा सके, आपको जलील कर सके। मगर इतिहास गवाह है कि हजारों दुश्मन सोचते सोचते थक गए, कोशिश करते करते जिंदगी की सांस खत्म हो गई, लेकिन उन्हें कोई ऐसा वाकया नहीं मिल सका जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर कोई ऐब लगा सके या आपकी इज्जत पर उंगली उठा सके। हर मुसलमान इस हकीकत को मानने पर मजबूर है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किरदार एक ऐसा किरदार है जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा किसी दूसरे के लिए मुमकिन ही नहीं है। यही वजह है कि ऐलान नबूवत के बाद वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने नेक बख्त बनाया था, आपका कलमा पढ़कर तन मन धन के साथ आप पर कुर्बान होने लगे और उनकी ज़बान पर जारी हो गया, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमारे दिल में आपकी इस कदर मोहब्बत है कि इस मोहब्बत के सामने हम अपने माँ बाप को भी कुर्बान कर सकते हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जिंदगी का 40वां साल शुरू हुआ तो अचानक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में एक नया इनकलाब जाहिर हो गया। फिर एकदम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले में रहना पसंद करने लगे और अकेले तन्हाई में बैठकर खुदा की इबादत करने का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अधिकतर वक्त अल्लाह ताला के कुदरत के नज़ारों को देखने और उनके बारे में गौर व फिक्र करने में गुजरता था। दिन रात अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात के फिक्र में डूबे रहते और अपनी कौम के बिगड़े हुए हालात को सुधार की फिक्र में रहने लगे। और इन दिनों में एक नई बात ये भी हो गई कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अच्छे अच्छे ख्वाब नजर आने लगे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर ख्वाब इतना सच्चा होता कि ख्वाब में जो कुछ देखते वो सच हो जाया करता था। मक्का शरीफ से तकरीबन 3 मील की दूरी पर जबल हिरा नामी पहाड़ के ऊपर एक गार है, एक गुफा है जिसको गारे हिरा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर कई कई दिनों का खाना पानी साथ लेकर उस गार के अंदर खुदा की इबादत में लगे रहते थे। जब खाना पानी खत्म हो जाता तो कभी खुद घर आकर ले जाते और कभी हजरत बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा
खाना पानी गार में पहुंचा दिया करती थीं। आज भी ये नूरानी गार अपनी असली हालत में मौजूद है और लोग उसकी जियारत भी करते हैं। एक दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गार हिरा के अंदर अल्लाह ताला की इबादत में लगे हुए थे कि अचानक गार में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक फरिश्ता जाहिर हुआ। ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जो हमेशा अल्लाह ताला का पैगाम उसके रसूलों तक पहुंचाते रहे हैं। फरिश्ते ने एकदम कहा कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मजबूती के साथ चिमट कर पकड़ा और छोड़ते हुए फरमाया, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने दूसरी मर्तबा फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने सीने से चिमटाया और छोड़कर कहा कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब इरशाद फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तीसरी मर्तबा फिर फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत जोर के साथ अपने सीने से लगाकर छोड़ा और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। तर्जुमा, यही सबसे पहली वही थी जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इन आयतों को याद करके हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ लाए, मगर इस वाक़ये से जो अचानक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पेश आया, इससे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक पर घबराहट थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने घर वालों से फरमाया कि मुझे कंबल उठाओ, मुझे कंबल उठाओ। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खौफ दूर हुआ और कुछ सुकून हुआ, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से गार में पेश आने वाला वाक़या बयान किया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। ये सुनकर हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान को कोई खतरा नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह ताला कभी भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रुस्वा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, दूसरों का बोझ उठाते हैं, खुद कमा कमा कर मुफलिसों और मोहताजों को देते हैं, मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं और हक़ व इंसाफ के लिए सब की मुसीबतों और मुश्किलात में काम आते हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। वर्का उन लोगों में से थे जो एक खुदा को मानते थे और मक्का वालों के शिर्क व बुत परस्ती से अलग होकर नसरानी हो गए थे और इंजील का इब्रानी भाषा से अरबी में तर्जुमा किया करते थे। बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे कहा कि भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुनिए। वर्का बिन नौफल ने कहा कि बताइए, आपने क्या देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा का पूरा वाक़या बयान फरमाया। ये सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा कि ये तो वही फरिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। फिर वर्का बिन नौफल कहने लगे कि काश मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के ज़माने तक तंदुरुस्त और जवान होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्का से बाहर निकालेगी। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से फरमाया कि क्या मक्का वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे? तो वर्का ने कहा, जी हाँ, जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह नबूवत लेकर आया, लोग उसके साथ दुश्मनी कर बैठे। उसके बाद कुछ दिनों तक वही उतरने का सिलसिला बंद हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही के इंतजार में बेकरार रहने लगे। यहाँ तक कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं घर से बाहर तशरीफ ले जा रहे थे कि किसी ने या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहकर पुकारा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा तो ये नजर आया कि वही फरिश्ता हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो गार में आया था, आसमान और जमीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में एक डर की कैफियत पैदा हो गई और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर पर आकर लेट गए और घर वालों से फरमाया कि मुझे कंबल उठाओ, मुझे कंबल उठाओ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़कर लेटे हुए थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सूरह मुदस्सिर की शुरुआती आयत नाजिल हुई और रब ताला का फरमान उतर पड़ा कि
या अय्युहल मुदत्थिर कुम फअंधिर वरब्बुका फकब्बिर वसियाबका फतहिर वरुज्जा फहजुर, यानी ऐ बाला पोश ओढ़ने वाले खड़े हो जाओ, फिर डर सुनाओ और अपने रब ही की बड़ाई बोलो और अपने कपड़े पाक रखो और बुतों से दूर रहो। इन आयत के नाजिल होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस्लाम की दावत देने पर मुकर्रर कर दिया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्लाम की दावत देने के लिए तैयार हो गए। इस्लाम की दावत के लिए 3 दौर चला। पहले दौर में 3 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छिप छिप कर इस्लाम की तबलीग करते रहे और इस दरमियान में औरतों में सबसे पहले हज़रत बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा और आज़ाद मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो और लड़कों में सबसे पहले हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो और ग़ुलामों में सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हरिसा रदियल्लाहु ताला अन्हो ईमान लाए। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की दावत व तबलीग से हज़रत उस्मान गनी, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत साद बिन अबी वक्कास, हज़रत तलहा बिन उबैदा रदियल्लाहु ताला अन्हुम भी जल्द ही दामन इस्लाम में आ गए। फिर कुछ दिनों के बाद हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत अबू सलमा, अब्दुल्लाह बिन अब्दुल असद, हज़रत अरकम बिन अबू अरकम, हज़रत उस्मान बिन मजून और उनके दोनों भाई हज़रत क़दामा और हज़रत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुम भी इस्लाम में दाखिल हो गए। फिर कुछ ज़माने के बाद हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी और हज़रत सुहैब रूमी, हज़रत उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, सईद बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नौफिल और उनकी बीवी फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब, हज़रत उमर की बहन रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चची हज़रत उम्मुल फ़ज़ल, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की बीवी और हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हुम भी मुसलमान हो गईं। इनके अलावा दूसरे बहुत से मर्दों और औरतों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। 3 साल तक छुप कर इस्लाम की दावत देने से एक मुसलमानों की जमात तैयार हो गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सूरह शुअरा की आयत व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन नाजिल फरमाए और अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ए महबूब, आप अपने करीबी ख़ानदान वालों को खुदा से डराइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन सफ़ा पहाड़ की चोटी पर चढ़कर ए ख़ानदान कुरैश कहकर ख़ानदान कुरैश को पुकारा। जब कुरैश वाले सब जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरी कौम, अगर मैं तुम लोगों से ये कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक फौज छुपी हुई है जो तुम पर हमला करने वाली है, तो क्या तुम लोग मेरी बात का यकीन कर लोगे? तो सब ने एकजुट होकर कहा, हाँ हाँ, हम यकीनन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात का यकीन कर लेंगे, क्योंकि हमने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमेशा सच और अमीन ही पाया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि मैं तुम लोगों को अल्लाह के अजाब से डरा रहा हूँ, और अगर तुम लोग ईमान ना लाओगे तो तुम पर अल्लाह का अजाब उतर पड़ेगा। ये सुनकर तमाम कुरैश, जिनमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब भी था, सख्त नाराज होकर सब के सब चले गए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में औल फौल बकने लगे। तीसरा दौर, अब वो वक्त आ गया कि ऐलान नबूवत के 4थे साल सूरह हजर की आयत फस्दा बिमा तुअमरू नाजिल फरमाई और अल्लाह ताला ने यह हुक्म फरमाया, ए महबूब, आपको जो हुक्म दिया गया उसको अलल ऐलान फरमाइए, यानी ऐलानिया तौर पर बयान कीजिए। चुनांचे उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलानिया तौर पर इस्लाम की दावत देने लगे और शिर्क और बुत परस्ती की खुल्लम खुल्ला बुराई बयान करने लगे और तमाम कुरैश बल्कि पूरा अरब आपकी मुखालफत पर उतर गया, आपके दुश्मन हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को तकलीफ देना शुरू कर दिया। कुफारे मक्का खानदान बनु हाशिम के बदला और लड़ाई शुरू हो जाने के डर से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल तो नहीं कर सके, लेकिन तरह तरह की तकलीफों से आप पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ने लगे। चुनांचे सबसे पहले तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जादूगर, शायर, मजनू होने का हर शहर और बाजार में जोरदार प्रचार करने लगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे बदमाश लड़कों की जमात लगा दिया जो रास्तों में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गालियां देते
और ये दीवाना है का शोर मचा मचा कर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर फेंकते। कभी कुफ्फार मक्का आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाते, कभी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर निजासत डालते, कभी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को धक्का देते, कभी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और नाजुक गर्दन में चादर का फंदा डालकर गला घोटने की कोशिश करते। रिवायत है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि एकदम पत्थर दिल काफिर उक़बा बिन अबी मुईत ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गले में चादर का फंदा डालकर इस जोर से खींचा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दम घुटने लगा। चुनांचे ये मंजर देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो बेकरार होकर दौड़ पड़े और उक़बा बिन अबी मुईत को धक्का देकर दूर किया और ये कहा कि क्या तुम लोग ऐसे आदमी को कत्ल करते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। इस धक्कम धक्का में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो ने कुफार को मारा भी और कुफार की मार भी खाई। कुफार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजज़ात और रूहानी तासुरात को देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा जादूगर कहते। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत फरमाते तो ये कुफार कुरान और कुरान को लाने वाले जिब्रील और कुरान को नाजिल फरमाने वाले अल्लाह ताला को और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गालियां देते और गली कूचों में पहरा बिठा देते कि कुरान की आवाज़ किसी के कान में ना पड़ने पाए, और तालियां पीट पीट कर और सीटियां बजा बजा कर इस तरह शोर गुल मचाते कि कुरान की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कहीं किसी आम मजमा में या कुफार के मेलों में कुरान पढ़कर सुनाते या इस्लाम की दावत देते तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे चिल्ला चिल्ला कर कहता जाता था कि ऐ लोगो, ये मेरा भतीजा झूठा है, नाऊज़ु बिल्लाह, ये दीवाना हो गया है, तुम लोग इसकी कोई बात ना सुनो। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुल्मजाज के बाजार में इस्लाम की दावत देने के लिए गए और लोगों को कलमाए हक की दावत दी तो अबू जहल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर धूल उड़ाता जाता था और कहता था कि ऐ लोगो, इसके फरेब में मत आना, ये चाहता है कि तुम लोग बुतों की पूजा छोड़ दो। इसी तरह एक मर्तबा जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे, ठीक हालत नमाज में अबू जहल ने कहा कि कोई है जो आले फलां के ज़बह किए हुए ऊंट की ओझड़ी लाकर सजदा की हालत में इनके कंधों पर रख दे। यह सुनकर उक़बा बिन अबी मुईत काफिर उठा और उस ओझड़ी को लाकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर रख दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में थे, देर तक ओझड़ी कंधे और गर्दन पर पड़ी रही और कुफार ठट्ठा मार कर हंसते रहे और मारे हंसी के एक दूसरे पर गिरते पड़ते रहे। आखिरकार हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो इन दिनों अभी कम उम्र की थीं, आईं और उन काफिरों को बुरा भला कहते हुए उस ओझड़ी को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कांधे मुबारक से हटा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक पर कुरैश की बदमाशी से बहुत तकलीफ हुई और नमाज से फारिग होकर 3 मरतबा ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, यानी ऐ अल्लाह, तू कुरैश को अपनी गिरफ्त में पकड़ ले। फिर अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खल्फ, अमारा बिन वलीद का नाम लेकर दुआ मांगी, इलाही इन लोगों को अपनी पकड़ में ले ले। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मैंने उन सब काफिरों को जंग बदर में बदर के दिन देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हुई हैं। फिर उन सब पर कुफार की लाशों को बहुत जिल्लत के साथ घसीट कर बदर के एक गड्ढे में डाल दिया गया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन गड्ढे वालों पर खुदा की लानत है। तो मेरे दोस्तों, हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बिल्कुल पूरी तरह समझ में आ गई होगी।